اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ دمشق کے حملے میں مسلمانوں کا جانی نقصان بھی کچھ کم نہیں تھا۔ بہت سے مجاہدین رومیوں کے تیروں اور پتھروں سے شہید اور زخمی ہو گئے۔ پھر اتنی تعداد لڑائی میں شہید ہوئی۔ شرحبیل رضی اللہ عنہ پریشان سے ہو گئے اور خالد رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ شرحبیل رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو لڑائی کی ساری رویداد سنائی اور یہ بھی بتایا کہ رومی سالار توما اگر مرا نہیں تو وہ لڑائی کے لیے ناکارہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی کتنی نفری شہید اور کتنی نفری زخمی ہوئی ہے۔ اگر رومیوں نے ایسا ہی ایک اور حملہ کیا تو شاید وہ ہم نہ روک سکیں۔ شرحبیل رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے کمک کی ضرورت ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، حسنہ کے بیٹے، ایسا حملہ کسی اور دروازے سے ہم میں سے کسی اور پر بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی دستے کی نفری کم نہیں کی جا سکتی۔ ابن حسنہ خدا کی قسم تو ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کیا اپنے اتنے زیادہ ساتھیوں کے خون نے تیرا حوصلہ کمزور کر دیا ہے؟ شرحبیل رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں ابن ولید، اگر مجبوری ہے تو میں ایک آدمی کی بھی کمک نہیں مانگوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تجھ پر حملہ ہوا تو ہم دیکھتے رہیں گے۔ اگر حملہ تیری برداشت سے باہر ہوا تو زرار تیری مدد کو پہنچے گا۔ پھر بھی ضرورت پڑی تو میں آ جاؤں گا۔ تیرے پاس جتنی بھی نفری رہ گئی ہیں اسے تیار رکھ۔ رومیوں کے سالار کو اگر آنکھ میں تیر لگا ہے تو ایک دو دن رومی باہر آ کر حملہ نہیں کریں گے۔ یہ رائے صحیح نہیں تھی۔ توما نے ایک معجزہ کر دکھایا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں جنگجو تھا۔ چونکہ وہ شاہی خاندان کا فرد تھا اس لیے سلطنت روم کی جو محبت اس کے دل میں تھی وہ قدرتی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کی آنکھ میں تیر لگا تو اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ جراح نے دیکھا کہ تیر اتنا زیادہ اندر نہیں اترا کہ توما کی ہلاکت کا باعث بن جائے۔ کھوپڑی کی ہڈی کو تیر نے مجروح نہیں کیا تھا، یہ صرف آنکھ میں اترا لیکن نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ توما نے جراح سے کہا، کاٹ دو اسے، باقی اندر ہی رہنے دو اور اس آنکھ پر پٹی باندھ دو، دوسری آنکھ پر پٹی نہ آئے۔ میں آج رات ایک اور حملہ کروں گا۔ جراح نے کہا، سالار اعلیٰ کیا کہہ رہے ہیں آپ لڑائی کے قابل نہیں۔ توما نے کہا، اس ایک آنکھ کے بدلے مسلمانوں کی 1000 آنکھیں ضائع کروں گا۔ میں انہیں صرف شکست نہیں دوں گا، میں ان کے وطن عرب تک ان کا تعاقب کروں گا۔ میں اپنے کام کو اس وقت مکمل سمجھوں گا جب ان کے ملک کو اس قابل رہنے دوں گا کہ وہاں صرف جانور رہ جائیں۔ توما کے یہ الفاظ متعدد مورخوں نے لکھے ہیں اور واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان میں یورپی تاریخ دان ہنری اسمتھ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان سب کی تحریروں کے مطابق توما کے حکم سے جراح نے تیر آنکھ کے قریب سے کاٹ دیا اور اوپر پٹی کس کر باندھ دی۔ یہ جذبے اور عزم کی پختگی کا کرشمہ تھا کہ توما نے اتنے شدید زخم کو برداشت کر لیا اور حکم دیا کہ آج ہی رات باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے۔ توما نے حکم دیا، اتنی ہی فوج باب توما کے سامنے اکٹھی کی جائے جتنی میں دن کے حملے میں لے کر گیا تھا۔ چلتے چلتے اس نے شراب پی اور ہتھیار بند ہو کر باہر نکل گیا۔ ان راتوں کو چاند پورا ہوتا تھا، فضا صاف رہتی تھی، اس لیے چاندنی شفاف ہوتی تھی۔ توما نے بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا۔ اس نے اپنے تمام دستوں کے کمانڈروں کو حکم دیا کہ 3 اور دروازوں باب صغیر، باب شرق اور باب حابیہ سے باہر جا کر مسلمانوں پر اس طرح حملے کریں کہ اپنے آپ کو لڑائی میں اتنا زیادہ نہ الجھائیں بلکہ انہیں اپنے ساتھ لڑائی میں مصروف رکھیں۔ وہ خود بڑا حملہ باب توما سے کر رہا تھا۔ دوسرے دروازوں سے حملے کروانے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ شرحبیل رضی اللہ عنہ کو کسی کی مدد نہ مل سکے۔ توما نے اپنے نائب سالاروں سے کہا، تمہارا دشمن اس وقت حملے کی توقع نہیں رکھتا ہوگا، تم انہیں سوتے میں دبوچ لو گے۔ توما کی فوج چاروں دروازوں سے باہر نکلی۔ وقت آدھی رات کا تھا۔ چاندنی اتنی صاف تھی کہ اپنے پرائے کو پہچانا جا سکتا تھا۔ مسلمانوں پر 4 جگہوں سے حملے ہوئے۔ ایک دروازے کے سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے کے سامنے یزید بن ابو سفیان تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے رومیوں کو جلدی بھگا دیا اور رومی قلعے میں واپس چلے گئے۔ یزید بن ابو سفیان کی حالت کمزور سی ہو گئی۔ رومیوں نے ان پر بڑا ہی شدید حملہ بولا تھا۔ یزید بن ابی سفیان نے مقابلہ تو کیا لیکن رومی ان پر حاوی ہوتے جا رہے تھے۔ زرار بن الازور مدد دینے کے کام پر مامور تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ یزید بن ابی سفیان کو مدد کی ضرورت ہے تو وہ 2000 سوار اور پیادہ مجاہدین کے ساتھ یزید بن ابی سفیان کے پاس پہنچ گئے۔ زرار کی جسمانی حالت لڑنے کے قابل نہیں تھی، ان کے بازو میں تیر لگا ہوا تھا اور جسم پر 2-3 اور گہرے زخم تھے، پھر بھی وہ میدان جنگ میں موجود تھے اور ان کی برچھی پورا کام کر رہی تھی۔ زرار نے اپنی اور یزید بن ابی سفیان کی فوج کو ملا کر حملے کا حکم دیا۔ یہ بڑا ہی شدید حملہ تھا۔ رومیوں
रूमियों पर ऐसा रोबदारी हुआ कि वो किले में वापस चले गए। उनकी लाशें और जख्मी पीछे रह गए। तीसरे दरवाजे के सामने राफे बिन उमैरा के दस्ते थे। उन पर भी रूमियों ने शदीद हमला किया और राफे के पांव उखाड़ दिए। मुसलमान बड़ी बेखौफी से लड़ रहे थे, लेकिन रूमियों का दबाव बड़ा सख्त था। इत्तेफाक से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने देख लिया और वो 400 सवारों को साथ लेकर राफे के पास पहुंचे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने नारा लगाया, मैं फारिस जलील हूँ, मैं खालिद इब्न वलीद हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रूमियों पर सिर्फ 400 सवारों से हमला कर दिया। रूमी जो राफे के दस्तों पर गलबा पा रहे थे, पीछे को दौड़ पड़े और दरवाजे में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया। असल लड़ाई तो बाबे तूमा के सामने हो रही थी। तूमा ने खुद वहाँ हमला किया था। शरबील रज़ियल्लाहु अन्हु की नफरी थोड़ी थी। मुजाहिदीन की तादाद कम रह गई थी और वो दिन की लड़ाई के थके हुए भी थे। शरबील रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब पहलुओं के तीरंदाजों को इस्तेमाल किया। रूमी तीर खा खा कर गिरते थे, लेकिन हमले के लिए आगे बढ़ रहे थे। शरबील रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिन के हमले में तूमा की गरजदार आवाज सुनी थी। उन्होंने रात को भी उसी आवाज की ललकार सुनी तो वो हैरान रह गए कि तूमा हमले की क़यादत कर रहा है। यही वजह थी कि रूमी तीरों की बौछारों में भी आगे बढ़े आ रहे थे। चांदनी रात में दोनों फौजों की बड़ी सख्त टक्कर हुई। शरबील रज़ियल्लाहु अन्हु के मुजाहिदीन ने हमला रोक लिया और बड़ी खूंरेज लड़ाई होती रही। मौरिखों ने लिखा है कि ये लड़ाई कमोबेश 2 घंटे जारी रही और दोनों फौजों के आदमी गिरते रहे। शरबील रज़ियल्लाहु अन्हु को किसी तरफ से भी मदद मिलने की तवक्को नहीं थी। लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। शरबील रज़ियल्लाहु अन्हु को तूमा की आवाज हैरान कर रही थी और तूमा शरबील रज़ियल्लाहु अन्हु को ढूंढ रहा था। उसकी दलेरी गैर मामूली थी। उसे चांदनी में मुसलमानों का परचम नजर आ गया और वो शरबील रज़ियल्लाहु अन्हु को ललकार कर उनकी तरफ बढ़ा। शरबील रज़ियल्लाहु अन्हु उसके मुकाबले के लिए तैयार हो गए। तूमा ने कहा, 1 आंख के बदले 1000 आंखें लूंगा। शरबील रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, तू दूसरी आंख भी देने आया है। दोनों घोड़ों से उतर आए। दोनों के हाथों में तलवारें और ढालें थीं और दोनों तेगजनी के माहिर थे। शरबील रज़ियल्लाहु अन्हु को तवक्को थी कि तूमा की एक ही आंख है और उसकी दूसरी आंख भी जख्मी है, इसलिए वो लड़ नहीं सकेगा, लेकिन वो पूरी महारत से लड़ रहा था। शरबील रज़ियल्लाहु अन्हु को ये तो मालूम ही नहीं था कि तीर अभी तूमा की आंख में है। शरबील रज़ियल्लाहु अन्हु का हर बार तूमा बचा जाता और तूमा का हर वार शरहबील रज़ियल्लाहु अन्हु बचा रहे थे। शरबील रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक वार बड़ा ही जोरदार किया। उनकी तलवार पहले तूमा के आहनी खोद पर लगी और वहाँ से फिसल कर कंधे पर लगी जहाँ आहनी ज़र्रा थी। इतना जोरदार वार लोहे पर पड़ा तो तलवार टूट गई। तूमा ने ललकार कर वार किया जो शरबील रज़ियल्लाहु अन्हु ने ढाल पर लिया। वो अब तलवार के बगैर थे, वार सिर्फ रोक सकते थे। तूमा बढ़ बढ़ कर वार कर रहा था। शरबील रज़ियल्लाहु अन्हु के 2 मुजाहिदीन ने देख लिया कि शरहबील रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार के बगैर खतरे में हैं, तो वो शरबील रज़ियल्लाहु अन्हु और तूमा के दरमियान आ गए। शरबील रज़ियल्लाहु अन्हु ने इधर उधर देखा, वो किसी की तलवार ढूंढ रहे थे। कुछ दूर उन्हें अपने एक शहीद मुजाहिद की लाश के करीब उसकी तलवार पड़ी नजर आई। उन्होंने दौड़कर तलवार उठा ली और वापस आए, लेकिन तूमा वहाँ नहीं था। शरबील रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दोनों मुजाहिदीन से पूछा कि तूमा कहाँ है। उन्होंने बताया कि वो पीछे हटते हटते लड़ाई के हंगामे में गुम हो गया है। उन्होंने उसे घोड़े पर सवार होते देखा था। शरहबील रज़ियल्लाहु अन्हु के आसाब पर बड़ा तकलीफ दे दबाव था। उन्हें पूरी तरह यकीन नहीं था कि वो रूमियों को शिकस्त दे सकेंगे। लड़ने में शरहबील रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके दस्ते ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने चंद 100 सवारों को अलग करके पहलू से रूमियों पर एक जोरदार हल्ला बोला। कुछ तो उस हल्ले ने काम किया। कुछ रूमी मायूस हो गए और वो पीछे हटने लगे। रूमियों में ये खूबी थी कि वो बेतरतीब होकर नहीं भागते थे, बल्कि तरतीब और तंजीम से पीछे हटते थे। शरबील रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें पीछे हटते देखा तो उनके पीछे न गए, क्योंकि मुसलमानों की नफरी थोड़ी रह गई थी। शरहबील रज़ियल्लाहु अन्हु खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे। पीछे जाने की बजाय उन्होंने तीरंदाजों को आगे करके पीछे हटते हुए रूमियों पर तीरों का मेह बरसा दिया। रूमी अपनी लाशों और जख्मियों को पीछे छोड़ते दरवाजे में जाकर गायब हो गए। रूमी जिस दरवाजे से भी बाहर आए थे वो लाशें और जख्मी फेंक कर उसी दरवाजे से अंदर चले गए। सबसे बड़ा हमला तूमा ने किया था, वो भी नाकाम रहा। अगर बात नाकामी तक होती तो रूमी ऐसे हमले फिर भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें जो जानी नुकसान उठाना पड़ा वो उनकी बर्दाश्त से बाहर था। उनकी नफरी पहले ही कुछ इतनी ज्यादा नहीं थी और अब तो आधी रह गई थी। तूमा के लिए एक दुश्वारी ये पैदा हो गई कि जब शहर पनाह के दरवाजे बंद हो गए और तूमा शहर में आकर रुका तो कई शहरियों ने उसे घेर लिया। एक आदमी ने कहा, सालार मौज़म, हम सल्तनत रूम के वफादार हैं। हम नहीं चाहते कि रूम की शहनशाही को मजीद नुकसान पहुँचे। हम पहले ही अर्ज कर चुके हैं कि मुसलमानों के साथ सुलह की बात की जाए। एक और ने कहा, शहरियों में जो बेचैनी और बदअमनी फैल चुकी है उसे आप नहीं देख रहे। फौज जो नुकसान उठा चुकी है वो आपके सामने है और आप खुद भी
जख्मी है। खतरा ही है कि शहरी जो अब नीम फाका कशी तक पहुंच गए हैं अपनी ही फौज के लिए नुकसान का बायस बन जाएं। तूमा जाबिर किस्म का सालार था। उसकी दलेरी और अज़म की पुख्तगी में कोई शक नहीं था, लेकिन उसकी हालत ये हो गई थी कि जो शहरी उसके साथ बात करता वो उस शहरी की तरफ देखने लगता। ये वो तूमा था जो किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता था। उसके चेहरे के तासुरात में शिकस्त साफ नजर आ रही थी। उसने अपनी उस आंख पर हाथ रख लिया जिसके अंदर तीर का एक टुकड़ा मौजूद था और ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। साफ पता चलता था कि उसे ये जख्म परेशान कर रहा है। उसने हारी हुई आवाज में कहा, मुझे सोचने दो, मैं सुलह कर लूंगा, लेकिन ऐसी कोई शर्त नहीं मानूंगा जो रूम की शहनशाही की तजलील का बायस बने। दरअसल तूमा ज़हनी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर चुका था। उसके सामने यही एक मसला रह गया था कि कोई ऐसी सूरत पैदा हो कि मुसलमानों के साथ बाइज्जत समझौता हो जाए। मौर्रिखों के बयानात के मुताबिक उसे किसी ने यह बताया था कि मुसलमानों के नायब सालार अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु नर्म मिजाज और सुलहजू इंसान है। अगर उन तक रसाई हो जाए तो बाइज्जत समझौता हो सकता है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक वो जानता था कि वो मुकम्मल शिकस्त और हथियार डालने से कम बात नहीं करते। तूमा ने अपने मुशीरों को बुलाया। बाहर मुसलमानों की कैफियत ये थी कि उनके हौसले बढ़ रहे थे और वो ललकार रहे थे कि रूमियों शहर हमारे हवाले कर दो, लेकिन शहर में दाखिल होने का कोई जरिया नजर नहीं आता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फैसला कर लिया कि मुजाहिदीन को 1-2 दिन आराम के लिए देकर शहर के दरवाजे तोड़ने की या दीवार में सुरंग लगाने की कोशिश करेंगे। सुबह तुलू हुई तो अल्लाह ने एक गैर मुस्लिम को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने खड़ा कर दिया। ये एक यूनानी था जिसका नाम यूनुस इब्ने मुरक्कस था। वो रात के वक्त जब रूमी अंदर बैठे अपने जख्म चाट रहे थे, शहर की दीवार से एक रस्से के जरिए उतरा था। उसने कहा कि वो एक लड़की को हासिल करने के लिए अपनी जान का खतरा मोल लेकर आया था। ये लड़की भी यूनानी थी और ये 18 सितंबर 634 ईस्वी 19 रजब 13 हिजरी का वाक़या है। 18 सितंबर 634 ईस्वी की रात थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया गया कि किले के अंदर से एक आदमी आया है जो अपना नाम यूनुस इब्ने मुरक्कस बताता है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, वो किले से नहीं आया। अगर किले के अंदर से ही आया है तो साफ नीयत से नहीं आया। अगर बाहर से आया है तो भी उसकी नीयत ठीक नहीं हो सकती। वो रूमियों का जासूस होगा, उसे मेरे पास भेज दो। वो एक जवान साल आदमी था, खुबरू और फुर्तीला। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के 2 मुहाफिजों ने उसकी तलाशी ली। उसने कमरबंद में एक खंजर उड़सा हुआ था जो उसने छुपा कर नहीं रखा था। ये उससे लेकर उसे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के खेमे में भेज दिया गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे सर से पांव तक देखा, फिर उस पर नजरें जमा दी। उस जवान साल आदमी ने कहा, सालारे आला, मुझे शक की निगाहों से देख सकते हैं। मैं आपके दुश्मन के किले से आया हूँ, आपको मुझ पर शक करना चाहिए। मेरा नाम यूनुस इब्ने मुरक्कस है और मैं यूनानी हूँ। आपकी और रूमियों की जंग के साथ मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, यूनान के जवान, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि अपने आने का मकसद फौरन बता दे? यूनुस इब्ने मुरक्कस ने कहा, मकसद मेरा जाती है, अगर आप ये पूरा कर दें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तू मेरी क्या मदद कर सकता है? यूनुस ने कहा, मैं आपको किले के अंदर पहुँचा सकता हूँ, फिर दमिश्क आपका होगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, तू किले से निकला कैसे? मैं कैसे यकीन करूं कि तू झूठ नहीं बोल रहा? यूनुस इब्ने मुरक्कस ने कहा, मैं बाबु शर्क के करीब फसील से रस्सा लटका कर उतरा हूँ। मेरे आने का मकसद भी सुन लें सालारे आला। दमिश्क में यूनानियों के 3-4 खानदान आबाद हैं। एक यूनानी लड़की के साथ मेरी मोहब्बत है। मैं आपको बता नहीं सकता कि हम एक दूसरे को किस कदर चाहते हैं। आपकी फौज ने दमिश्क का मुहासरा किया तो उससे थोड़ी ही देर पहले उस लड़की के साथ मेरी शादी हुई। इतने में शोर उठा कि मुसलमानों ने शहर का मुहासरा कर लिया है। लड़की के वालिदैन ने लड़की को मेरे हवाले करने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि मुहासरा टूट जाने के बाद ही लड़की को मेरे हवाले करेंगे। सालारे आला, मैं मोहब्बत के हाथों इतना मजबूर हूँ कि इंतजार नहीं कर सकता। दरअसल लड़की की माँ की नीयत ठीक नहीं। वो अपनी बेटी की शादी एक बड़े ही मालदार ताजिर के साथ करना चाहती थी, लेकिन उसकी बेटी ने मेरी मोहब्बत की खातिर उसे मजबूर कर दिया कि उसकी शादी मेरे साथ कर दे। आपकी फौज ने शहर को मुहासरे में ले लिया तो उसे बहाना मिल गया। उसने कहा कि हर कोई शहर के दिफा में लगा हुआ है, अच्छा नहीं लगता कि तुम दोनों शादी की तकरीब मनाओ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ मोहब्बत की दास्तानें सुनने आया हूँ? तू वो बात फौरन क्यों नहीं कह देता जो तू कहने आया है? अगर तू यहाँ किसी और नियत से आया है तो तू यहाँ से जिंदा किस तरह जाएगा? यूनुस इब्ने मुरक्कस ने कहा, इब्ने वलीद, कौन है जो तेरे खेमे में बुरी नियत से आने की जुर्रत कर सकता है? जिसने सल्तनत रूम जैसे अजीम और जाबिर सल्तनत की बुनियादों तक को हिला डाला हो, उसे मुझ जैसे मामूली आदमी से नहीं डरना चाहिए। और ये भी सोच कि मैं रूमी नहीं यूनानी हूँ। मुझे सिर्फ अपनी बीवी चाहिए और तुझे दमिश्क। राज की बात यह है कि 3-4 दिन लड़ाई नहीं होगी। पूछा, क्यों नहीं होगी? यूनुस ने कहा, दमिश्क का सालार तूमा जख्मी है,
लेकिन लड़ाई न होने की सिर्फ ये वजह नहीं, एक वजह ये भी है कि शहर के लोग सालार तूमा के पीछे पड़े हुए हैं कि वो मुसलमानों के साथ जंगबंदी और सुलह की बात करें। शहर में अनाज की किल्लत कहत की हद तक पहुंच गई है और सबसे बड़ी वजह लड़ाई न होने की ये है कि कल रात दमिश्क के लोगों का एक जश्न है जिसमें रूम की फौज भी शरीक होगी। किसी को किसी का होश नहीं होगा। मैं आपकी ये मदद करूंगा कि फसील पर कमंद फेंकने की मौजूद जगह बता दूंगा। आपके चंद एक आदमी फसील पर चढ़ाएं और अंदर से एक दरवाजा खोल दें, फिर आपकी फौज शहर में दाखिल हो जाए। बाज मौरिखों ने लिखा है कि अहले दमिश्क अपना कोई सालाना जश्न मना रहे थे। ऐसे जश्न में वो इतनी ज्यादा शराब पीते और रंगरलियों में ऐसे मगन होते थे कि उन्हें अपने पराये की होश न रहती और फौज भी उसमें शरीक होती थी। लेकिन अब ऐसी हालत में दमिश्क वालों का ऐसा जश्न मनाना कि वो अपने होशो हवास भी खो बैठे काबिल यकीन नहीं लगता था। दमिश्क के अंदर की हालत बयान की जा चुकी है। वहाँ तो कहत और खौफो हरास की कैफियत थी। रूम की फौज की बेशुमार नफरी मारी जा चुकी थी, लाशें बाहर गल सड़ रही थीं और जख्मी अंदर कर्राह रहे थे। इन हालात में जश्न को तस्लीम नहीं किया जा सकता। एक यूरोपी मौरिख हेनरी स्मिथ ने इस वाक़े को यूं बयान किया है कि वो हकीकी लगता है। उसने शाम से रूमियों की पसपाई के बयान में लिखा है कि दमिश्क के महासर में रूमियों की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वो हथियार डालने पर आ गए थे। उनके मजहबी पेशवाओं ने रूमी सालार तूमा से कहा था कि उनसे खुदा नाराज है। खुदा को राजी करने के लिए मजहबी किस्म के जश्न का एहतमाम किया गया था। दमिश्क में दूसरे अकीदों के लोग भी थे जो अपने अंदाज से मजहबी तकरीब मुनक्किद कर रहे थे। चूंकि ये मजहब का और फतह के लिए दुआ का मामला था, इसलिए उसमें हर किसी की शिरकत लाजमी थी। फौज को भी उसमें शामिल होना था। उस यूरोपी मौरिख ने यह भी लिखा है कि ऐसा कोई खतरा नहीं था कि मुसलमान किले पर चढ़ाई कर देंगे। ये कोई आसान काम नहीं था। मुसलमानों की अपनी हालत ऐसी मजबूत नहीं रही थी कि वो हल्ला बोल देते। ये तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का अज़्म था और उन्हें अपने तमाम सालारों का भरपूर ताउन हासिल था कि दमिश्क को चंद दिनों में सर करना है। यूनुस इब्न मुरक्कस के मुताल्लिक तमाम मौरिख मुत्तफिक हैं। उसने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को कायल कर दिया कि वो उन्हें किले में दाखिल कर देगा और उसके इवज वो सिर्फ ये चाहता है कि उसकी बीवी उसे दिला दी जाए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस यूनानी पर एतबार कर लिया और उसे सबसे पहले इस्लाम की दावत दी। यूनुस ने कहा, मैंने इस्लाम के मुताल्लिक बहुत कुछ सुना है, लेकिन मुझे कोई बताने वाला नहीं था और मेरा हाथ थामने वाला कोई नहीं। मुझे अपने पास रखे, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। क्या मुझे अपना नाम बदलना पड़ेगा? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नहीं, तुम्हारा नाम पहले ही इस्लामी है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे मुसलमान कर लिया और उससे पूछने लगे कि कमंद कहाँ और किस तरह लगाई जाए और अंदर की तरफ से दरवाजे की हिफाजत का क्या इंतजाम है।